قومی اقتصادی کونسل کا اہم اجلاس درآمدی بل کم کرنے کے لیے اہم فیصلہ ملک بھر میں مارکیٹیں اور کمرشل سیکٹر رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ وفاقی کابینہ کے فیصلے کی صوبائی وزرائے اعلیٰ نے بھی تائید کر دی پرانے بلب کی جگہ LED لائٹس لانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے گرین انرجی منصوبے پر عمل درآمد کرنے کی بھی منظوری اس منصوبے کے تحت بتدریج توانائی کے متبادل ذرائع پیدا کیے جائیں گے تھرمل بجلی پر انحصار کم سے کم کیا جائے گا توانائی پالیسی لاگو کر کے امپورٹڈ فیول بل کو کم کیا جائے گا اس فیصلے پر ملتان کے تاجروں کا کیا رد عمل ہے جانتے ہیں وسیم شہزاد سے ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر سے درآمدی بل کم کرنے کے لیے اہم فیصلہ سامنے آیا ہے ملک بھر میں مارکیٹیں اور کمرشل سیکٹر رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی کابینہ کے فیصلے کی صوبائی وزرائے اعلیٰ نے بھی تائید کر دی ہے پرانے بلب کی جگہ LED لائٹس لانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے گرین انرجی منصوبے پر عمل درآمد کرنے کی بھی منظوری اس منصوبے کے تحت بتدریج توانائی کے متبادل ذرائع پیدا کیے جائیں گے تھرمل بجلی پر انحصار کم سے کم کیا جائے گا توانائی پالیسی لاگو کر کے امپورٹڈ فیول بل کو کم کیا جائے گا نامنظور حکومتی فیصلہ نامنظور جنوبی پنجاب کے تاجروں نے رات 8 بجے دکانیں بند کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا کہا کاروبار پہلے ہی مندی کا شکار ہیں دہی صحیح کسر حکومتی فیصلے سے پوری ہو جائے گی حکومت اپنے اخراجات کم کرے ہماری عید خراب نہ کرے فوری طور پر فیصلہ واپس لیا جائے مزید اس رپورٹ میں جنوبی پنجاب کے تاجروں نے مارکیٹیں رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا کسی نے حکومتی فیصلے کو خوش آئند اور کسی نے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کی بھاولپور شجاباد اور بھاول نگر کے تاجروں کا کہنا تھا کہ NEC کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے حکومت انرجی بچاؤ پروگرام کے لیے تاجر برادری کو اعتماد میں لے پہلے ہی کاروبار مندی کا شکار ہیں گاہک شام کے وقت باہر نکلتا ہے جبکہ حکومت شام کے وقت کاروبار پر پابندی عائد کر رہی ہے تاجروں کا کہنا تھا کہ رات 8 بجے مارکیٹیں بند کرنے کا فیصلہ فی الفور واپس لیا جائے کاروبار کے بہت برے حالات ہیں جی مہنگائی بہت زیادہ ہے لوگ گندم نہیں لے سکتے آٹا نہیں خرید سکتے اوپر سے یہ آرڈر کر دیا گورنمنٹ نے اس میں تو لوگ بالکل بیچارے بے بس ہو جائیں گے حکومت کے اس فیصلے سے کہ 8 بجے مارکیٹیں بند تاجر انتہائی پریشان ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شدید گرمی کے موسم میں جو ہے لوگ شام کو نکلتے ہیں یا رات کو نکلتے ہیں تو اتنی جلدی مارکیٹیں بند کرنے سے ظاہر ان کا کاروبار متاثر ہوگا لودھرا لیا اور کہروڑ پکا کے تاجروں نے بھی حکومت کی جانب سے رات 8 بجے دکانیں بند کرنے کے فیصلے کو مسترد کر دیا تاجر برادری کا کہنا تھا کہ حکومت ان کا معاشی قتل کر رہی ہے حکومت مارکیٹیں بند کرنے کی بجائے اپنے اخراجات کم کرے دکانیں بند کرنے کا وقت رات 10 بجے تک بڑھایا جائے تاجروں کا کہنا تھا کہ گرمی میں دن کے وقت گاہک نہیں آتا زیادہ تر رات کے وقت رش ہوتا ہے اس طرح کے حکومتی فیصلے سے ہماری عید خراب ہو جائے گی ملتان پولیس ان ایکشن بدفعلی کے بعد بچے کو قتل کرنے والا ملزم گرفتار دوسری جانب ابلتے تیل میں بچے کے ہاتھ جلانے والا ملزم بھی پکڑا گیا ملزمان کی فوری گرفتاری پر CPO کی پولیس ٹیم کو شاباش ملزمان کو سخت سزائیں دلوانے کے عزم کا اظہار کیا گیا ماہر عمران رپورٹ کریں گے سٹی پولیس آفیسر ملتان منصور الحق رانا نے پولیس لائن میں دیگر افسران کی ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کی انہوں نے بتایا کہ راجہ رام میں 10 سالہ بچے کو بدفعلی کے بعد قتل کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے شہباز مالی نے بچے کو اسکول سے واپسی پر اغوا کیا کھیتوں میں لے جا کر بدفعلی کی اور گلا کاٹ کر قتل کر دیا میں آم آپ کو کھلاتا ہوں وہ اس طرح کر کے اس کو بچے کو لے گیا جب وہ آ گئی وہاں پہ میز کی فصل آ گئی تو وہاں پہ اس نے بچے کو قابو کر لیا اس کے بعد اس سے سوڈمی کی جب سوڈمی ہوگی اس کے بعد اس کو اچانک یہ احساس ہوا کہ یہ تو بڑا سیریس آفینس ہو گیا یہ جا کے بتائے گا تو وہ مالی کا کام کرتا تھا وہ لڑکا وہ بھی ینگ بوائے ہے لائک 20-22-24 سال عمر ہے اس کی تو اس کے پاس چاقو تھا جو وہ تو اس سے وہ کاٹتا تھا یہ شاخیں وغیرہ اس سے پھر اس نے بچے کا گلا کاٹ دیا اور وہاں پہ اس کو پھینکا تو وہ اس کی بلیڈنگ سے جو ہے نا اس کی ڈیتھ ہو گئی SSP آپریشن محمد عمران کا کہنا تھا کہ جدید ٹیکنالوجی کے باعث ملزم کو گرفتار کر کے آلہ قتل برآمد کر لیا گیا ہے دوسری طرف 5 سالہ زہیب پر تشدد کرنے اور کھولتے تیل میں ہاتھ ڈالنے والے ملزم کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے گھنونے جرم میں ملوث ملزمان کسی رعایت کے مستحق نہیں لال پور والا جیسے ہی ہمارے نوٹس میں آیا SHO کو ہم نے سسپینڈ کیا کلوز کیا اور ساتھ ہی اس پہ FIR بھی کی انکوائری بھی بٹھا دی
इंक्वायरी का भी टाइम होता है 3 से 4 दिन, वो हमने पूरा करना होता है, क्योंकि वो अब जो डिलिंक्वेंट पार्टी होती है, मुल्ज़िम पार्टी होती है, उसका भी हक होता है अपना जवाब देने का। वो सुनने के बाद यहाँ पर किसी को नहीं हम स्पेयर कर रहे। बाकी रहा मखदूम रशीद का, वो SHO अपनी सजा ले चुका हुआ है, शायद आपके नोटिस में है या नहीं, उसको रिवर्ट कर दिया गया वो। हमने फर्स्ट यूनिट में लेकर गए, अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टेबल है। और उसके बाद फिर हमने जो होटल मालिक था वो वहाँ से डिस्काउंट कर चुका था, लेकिन हमने अपने IT के जरिए और अपनी टीम के जरिए उसको जाके हमने उसको अरेस्ट किया। तो अरेस्ट करने के बाद फिर उसका हमने FIR रजिस्टर्ड की, वो लॉकअप में है। CPO मुल्तान ने मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी पर DSP शुजाबाद गुलाम मुर्तजा सियाल, SHO राजा राम अब्दुल सबूर, DSP मखदूम रशीद मोहम्मद नईम और SHO बस्ती मलूक हमाद खान समेत पूरी टीम को शाबाश दी। कैमरामैन हारून रमजान के साथ मोहम्मद इमरान नवाज, मुल्तान। अद्वियात की बढ़ती कीमतों के हवाले से आपको खबर देंगे। गरीब के लिए इलाज मुआवजा जारी रखना मुश्किल हो गया। मियांवाली में अद्वियात की कीमतें मरीजों की पहुंच से दूर। मल्टीनेशनल कंपनियों की अद्वियात 70 जबकि मुल्की सतह की अद्वियात 30% महंगी हो गई हैं। महंगी दवाई खरीदने से कासिर मरीज तकलीफ सहने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मरीजों की तकालीफ मजीद बढ़ गई। इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात मरीजों की पहुंच से बाहर। मल्टी नेशनल कंपनियों की अद्वियात 70% महंगी हो गई, जबकि नेशनल कंपनियों की अद्वियात की कीमतों में 30% इजाफा कर दिया गया है। शहरियों का कहना था कि आए रोज अद्वियात की कीमतें बढ़ रही हैं। डिप्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला राइस कैप्सूल 75 रुपए से बढ़कर 195 रुपए का हो गया है। जी सर, बिल्कुल रोज ब रोज कीमतों में इजाफा हो रहा है। मेडिसिन की कीमतों में ये अब राइस कैप्सूल है डिप्रेशन के लिए, पिछले हफ्ते में लेके गया हूँ 75 रुपए का ये डब्बी मिली है। अब आज आया हूँ तो 195 रुपए में सुन के मैं तो दंग रह गया हूँ। हुकूमत से यही मुतालबा करेंगे खुदारा मरीजों पे, हम गरीबों पे तरस खाएं। दुकानदारों को कहना था कि मल्टीनेशनल कंपनियों की अद्वियात की कीमतों में 70% इजाफा हुआ है। पैरागॉन प्लास्टर 98 रुपए से बढ़कर 280 रुपए का हो गया। एंटीनार्म गोलियां 77 रुपए से बढ़कर 115 रुपए की हो गई हैं, जबकि प्रेग्नोविट गोलियां 700 रुपए की बजाय 1500 रुपए में दस्तयाब हैं। रिफाफोर 2000 की बजाय 2500 रुपए में फरोख्त हो रही है। तकरीबन 70% इजाफा हुआ है, जिसमें पैरागॉन प्लास्टर है और उसमें राइस कैप्सूल है और उसके अलावा एटीनार्म गोली, एक ब्लड प्रेशर की गोली है, वो 77 की थी और अब है 115 की हो गई है। जिसमें और एक गोली है रिफाफोर प्लस, वो पहले 2000 का डब्बा था, अब 2500 का हो गया। परेशान हाल शहरियों ने हुकूमत से अद्वियात की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करेंगे रहीमिया खान से, जहां मरीजों की मुश्किलात कम ना हो सकी। लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद का मामला गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर गया। शेखजाद हस्पताल की OPD मुसलसल छठे रोज भी बंद। तीनों सूबों के दूर दराज इलाकों से आए मरीज इलाज के लिए तरस गए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस एग्जीक्यूटिव कमेटी के वाइस चेयरमैन खुदा बख्श ने मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया। आमिर भट्टी की रिपोर्ट में मजीद तफसीलात देखेंगे। लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ रहीमिया खान में डॉक्टरों की हड़ताल जारी। छठे रोज भी शेखजाद अस्पताल की OPD के ताले ना खुल सके। दूर दराज के इलाकों से आए मरीज इलाज के लिए रुल गए। लवाहिकीन का कहना था कि वो मुसलसल अस्पताल आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर मौजूद नहीं। निजी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं, वो किससे फरियाद करें। सर, मैं पाकिस्तान के तमाम अदारों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं अपने भाई को लेके आया हूँ। मैं रैशी जिला रहीमिया खान, तहसील खानपुर, सकना, मौदा, मीरपुर, शुगर मिल जट्टा पुट्टा का रैशी हूँ। सर, मुझे 10 दिन हो गए भेजते को, भागते को। आज करते हैं इलाज, कल करते हैं। जो असर असरूख वाले बंदे हैं उनका तो इलाज हो रहा है, बाहर से दवाई डॉक्टर से ले रहे हैं, इधर से ले रहे हैं। हम तो घूम रहे हैं, आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना, ऐसे घूम रहे हैं। आज के दिन बोला फिर आ जाएं, यहाँ ठहरे पड़े हैं होटल पर, क्या करें, कहाँ जाएं। ॾाढी मेरे को तकलीफ है, मैं ॾाढी बीमार हाँ, मेरा कोई हल नहीं थींदा, मैं क्या करा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस एग्जीक्यूटिव कमेटी के वाइस चेयरमैन खुदा बख्श ने भी सुर्ख झंडी दिखा दी। कहा, डॉक्टरों पर तशद्दुद के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को पता है कि हर दूसरे दिन जो है ना किसी महकमे हेल्थ के कभी डॉक्टर्स को मारा जा रहा है, ठीक है, कभी जो है वो महकमे के डिस्पेंसर है उनके साथ अटेंडेंट बदतमीजी करते हैं, कभी नर्स के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। जब तक तमाम तर महकमे हेल्थ के एक एक वर्कर को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, तब तक पूरे पंजाब की जो है ना OPD तमाम तर जो है वो उनकी OPD बंद रहेगी। जब तक ये गवर्नमेंट जो है ना डॉक्टर्स कमेटी को और तमाम तर महकमे हेल्थ के हर एक वर्कर को प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं मिलेगी।
परेशान हाल मरीजों ने आला हुकाम से डॉक्टरों की हड़ताल फौरी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। तोनसा शरीफ में महकमा पब्लिक हेल्थ की नाअहली। शहर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को 2 माह से ताले लग गए। शहरी पीने के साफ पानी से भी महरूम है। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा रोही अजमत बुजदार। तोनसा शरीफ में महकमा पब्लिक हेल्थ की गफलत या फिर नाअहली। शहर में महल्ला कालू उस्मान वाला, कमेटी रोड और न्यू काली रोड के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 2 माह से बंद हैं। सोलर पर चलने वाले इन प्लांट्स को ताले लग गए हैं, जिसकी वजह से शहरी पीने के साफ पानी से महरूम हैं। शहरियों का कहना था कि फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद होने की वजह से वाटर सप्लाई का पानी पीने पर मजबूर हैं। 2-3 महीनों से बंद है कि इंतजाम को आखे से जल्दी खुलवाया वजे। वो केरा मसला है, के मोटर मसला है, कोई बिजली का कोई खर्चा का नहीं कि सोलर रेचन जितना जल्दी थी मेहरबानी कर को पानी साफ किया जितना जल्दी थी सकते हैं। शहरियों ने एहतजाज करते हुए हुकाम से मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को बहाल किया जाए। लोग कितने को पानी प्लांट यो सही है रेत ये बंद है दूजा महीने थी गए कोई सफाई का नहीं कोई बैटरी का दरखाई नहीं मिलना दरखाई दरोला है ये बंद की थी कोई बैटरी खराब है तो जितना प्लांट बाजार वो भी बंद है। तकलीफ होता है, मेहरबानी करें अगर ये खुल जाए बहुत अच्छा होगा। इधर पानी का बहुत मुश्किल है। महकमा पब्लिक हेल्थ की तरफ से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बंदिश से शहरी परेशान हैं और महकमा इन प्लांट्स को चलाने में मुकम्मल नाकाम नजर आता है। जरूरत इस बात की है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट चलाने की जिम्मेदारी म्यूनिसिपल कमेटी के हवाले की जाए ताकि शहरियों को पीने का साफ पानी मिल सके। कैमरा टीम के साथ अजमत बुजदार, रोही, तोनसा शरीफ। मियांवाली के इलाका पिपला में तहसील इंतजामिया की नाअहली। शहर के जनरल बस स्टैंड पर सहूलियात का फुकदान। लाखों की आबादी वाले शहर का जनरल बस स्टैंड वीरानियों का मंजर पेश करने लगा। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली की तहसील पिपला में जनरल बस स्टैंड पर सहूलियात का फुकदान। मुसाफिर कहते हैं बस स्टैंड पर सहूलियात दस्तयाब नहीं है। बस स्टैंड पर मुसाफिर खाना है, न ही वाशरूम। मर्द खवातीन मस्जिद के वाशरूम इस्तेमाल करते हैं। बारिश के दिनों में बस स्टैंड पानी से भर जाता है। ये बहुत बड़ा स्टैंड है बस स्टैंड। ये नाल मस्जिद खली है जिसदे विच खवातीन भी इस मस्जिद जेड़े वाशरूम हैं वो इस्तेमाल करेनियां ते मर्द जेड़े हैं वो भी इया वाशरूम इस्तेमाल करेने मस्जिद वाले। ते इस जगह ते बावन दी जगह कोनी, उस तो बाद पानी पीवन दी कोई सहूलत कोनी, सफाई कोनी, बीमारियां फैलन दा इत्थे खतरा पैदा थींदा पई। उस तो बाद जनाब ली जाते बारिश आ वने तो पानी इतना खलर आंदा ते 4-4 दिहाड़े पानी सुकने च नहीं आंदा। बस स्टैंड पर धूप से बचने का कोई इंतजाम नहीं। शदीद गर्मी में पीने का ठंडा पानी तक दस्तयाब नहीं होता। बस स्टैंड की कोई चार दीवारी भी नहीं है। ड्राइवर्स ने बस स्टैंड में अपनी मर्जी के रास्ते बनाए हुए हैं। बहरहाल जैसे देखा जाए कि कोई हालात वगैरह नहीं है इधर, ना वाशरूम वगैरह है, ना कोई स्टे की जगह है जिधर बंदा मुसाफिर आ जाए तो बंदा बैठ जाए। अभी देखो कोई किधर बैठा है, कभी ग्राउंड के रोड की तरफ वेट कर रहा होता है कि किधर वेट कर रहा होता है। लेडीज़ वगैरह होती हैं बेचारे बहुत ज़्यादा इधर गर्द आलूद भी आप देख रहे हो एरिया की पोल्यूशन वगैरह कितनी गंदी है। तो ये है कि इधर बंदा कोई चीज़ ऐसे स्टेबल बना दे ताकि आवाम इधर बैठ जाए। कोई लेडीज़ वगैरह होती हैं, फैमिलीज होती हैं। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि बस स्टैंड पर तमाम तर सहूलियात फराम की जाएं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। इंतजामिया की नाअहली या फंड्स की किल्लत। सादिकाबाद का मेन रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। हिचकोले खाती गाड़ियां हादसात का शिकार होने लगी। धूल के बायस सांस लेना भी मुहाल। अवामी नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मलिक जावेद अनवर की रिपोर्ट में देखेंगे। सादकाबाद के एलपी रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं। गहरे गड़ों के बायस हिचकोले खाती गाड़ियां हादसात का शिकार होने लगी। उड़ती धूल के बायस सांस लेना भी मुहाल हो गया। दुकानदारों और राहगीरों के मसाइल बढ़ गए हैं। शहरियों का कहना था कि शहर में दाखिले का मेन रोड इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। 10 से 12 साल का रोड टूटा हुआ है तो काम नहीं हो रहा, गाड़ियों में टूट फूट हो रही है। जो 10 मिनट का सफर है तकरीबन 1 घंटे में तय हो रहा है। ठीक है, आवाम इतनी परेशान है, दुकानदार बहुत परेशान है, इधर गाहक नहीं आ रहा, कोई आ ही नहीं सकता। 92 रोड है, बड़ा रोड है, हाईवे स्पीड, इसका काम नहीं कर रहा। हुक्मरान पता नहीं किधर सोए हुए हैं। भाई मेहरबानी इसके बारे में सोचा जाए। शहरियों का मजीद कहना था कि गहरे गड़ों के बायस हादसात मामूल बन गए हैं। उड़ती धूल के बायस सड़क के अतराफ दुकानदार सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। आने जाने में बहुत किल्लत होती है। गाड़ियां वाले आते हैं, इतनी स्पीड से आते हैं, खड्डे इतने हैं, एक्सीडेंट हादसा हो रहे हैं। यहाँ पे मिट्टी इतनी उड़ती है। इस रोड को बनना चाहिए। कितनी दुकानें हैं, पत्थर रोड के दुकानों के ऊपर जा रहे हैं। कि सारी रोड दुरुस्त की जाए। ऐसी बहुत ज़्यादा परेशान है। धूल इतनी कि हद से ज़्यादा, और गाड़ी जब गुजरती हैं स्पीड में गड्ढों में जाती हैं, पत्थर स्लिप होते हैं, सीधे आग लगते हैं। ठीक है, नित रोज एक्सीडेंट यहाँ पे। कारोबार की वो कंडीशन नहीं रह चुकी। हम फिर लोग जाएं तो जाएं कहाँ, ये बताएं हमें हुकूमत। मेहरबानी करें, हमारी ये इल्तिजा हमारी कबूल करें। टूट फूट के शिकार रोड पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ने लगा। अवामी नुमाइंदों ने भी गफलत की इंतहा कर दी। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ मलिक जावेद अनवर, रोही न्यूज़, सादकाबाद।
और अब सियासी गहमा गहमी पर नजर डाल लेते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ हकीकी राव यासिर ने कहा है कि अब तक 41,000 लोग हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हो गए हैं। तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहने वाले साबिक ज़िला नायब सदर इब्रार हुसैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राव यासिर का मजीद क्या कहना था, जानने के लिए देखते हैं मुल्तान से जुनेद अनवर की रिपोर्ट। चेयरमैन तहरीक इंसाफ हकीकी राव यासिर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए सरगर्म। मुल्तान में पार्टी सेक्रेटरीट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ हकीकी को बने 10 रोज हुए हैं। अब हमारे पास 41,000 कारकुन रजिस्टर्ड हो चुके हैं। जनूबी पंजाब से बड़ी तादाद में कारकुनान ज्वाइन कर रहे हैं जो मिशन लेकर पीटीआई में शामिल हुए थे। तहरीक इंसाफ हकीकी इस पर काम करेगी। नौजवानों से कहता हूँ आगे आएं और हमारे साथ चलें। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी को बने हुए 10 दिन हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से हमें लोग 41,000 लोग हमारी वेबसाइट पे अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ऑन द रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। और पूरे जनूबी पंजाब से जो लोग हैं जो मायूस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतशार पसंदी की सियासत से, वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह झोंक दर झोंक हमारे साथ रहनुमा, यूथ रहनुमा, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो यूथ की तरफ है। तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले साबिक ज़िले नायब सदर चौधरी इब्रार हुसैन ने कहा कि 9 मई के वाक़े से दिल बर्दाश्ता हुए। तहरीक इंसाफ की सियासत इंतशार की तरफ चली गई। आज तहरीक इंसाफ हकीकी को ज्वाइन कर रहा हूँ। तहरीक इंसाफ ने नौजवानों का सिर्फ नारा लगाया मगर इन्हें टिकट नहीं दिया। 13 MPs की सीटें और 6 MNS की सीटों के अंदर कोई एक सीट बताएं जो यूथ को दी गई हो। आप मुझे ये बताएं कि 55 लाख की आबादी के अंदर कोई एक नौजवान भी ऐसा नहीं मिला जो इस काबिल हो, जो लीड कर सकता हो, या जो टिकट MPA का अहल हो या MNA का अहल हो। ये एक फिकदान था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कि नौजवानों को मौका नहीं मिला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी के अंदर इंशाल्लाह वो जो फिकदान था कि नौजवानों को मौका नहीं दिया गया, वादे करने के बावजूद उस फिकदान को इंशाल्लाह दूर करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई को छोड़कर तहरीक इंसाफ हकीकी में शामिल होने वाले उज़ैर खान मोहम्मद, चौधरी वकास बरकत, फरुख तरीन, चौधरी इफ्तिखार, राव मुजम्मिल, राव शुएब, राव हमजा, मोहम्मद फरहान और हमजा हाशमी भी मौजूद थे। कैमरामैन हारून अली के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तरक्कियां। रहमान खान पुलिस में तरक्की पाने वाले इंस्पेक्टर्स की एजाज़ में तकरीब सजाई गई। DPO रिजवान उमर गोंदल ने एहलकारों को प्रमोशन बैजेस लगाए और मुबारकबाद दी। देखते हैं आसिम सदीक की रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की हिदायत पर पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर एहलकारों को तरक्की दी गई। रहीम यार खान से ताल्लुक रखने वाले 15 सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर्स के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। वसीम कौसर, हुसैन रजा निजामी, शबीर अहमद जोड़ू, रफीक खान चांडिया, अमजद खान दश्ती, मोहम्मद अकबर जोया, जाम मोहम्मद इजाज, शबीर अहमद, हसन इकबाल, अरसलान साजिद, राना मोहम्मद अशरफ, राना इकबाल हुसैन, असदुल्ला मस्तोई, शहजाद अरशद और फकीर हुसैन ने इंस्पेक्टर्स के ओहदे पर तरक्की हासिल की। DPO रिजवान उमर गोंदल ने DSP लीगल मोहम्मद रजाक राना के हमरा इंस्पेक्टर्स को प्रमोशन बैजेस लगाए। इस मौका पर DPO का कहना था कि तरक्की हासिल करने से इन पर जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। आज रैंक पिनिंग सेरेमनी थी यहाँ पे इंस्पेक्टर्स की, तो जस्ट फ्रॉम रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट 15 इंस्पेक्टर्स जो हैं वो उनको आज रैंक पिनिंग सेरेमनी हुई है। आज के दिन बोर्ड हुआ है, DPC हुई है रीजनल लेवल पे, जिसपे 90 प्लस के करीब जो लोग हैं उनको ASIs किया गया है और 31 को सब इंस्पेक्टर्स किया गया और ये सिलसिला अभी तक जारी है। प्रमोशन जो भी होती है जो बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है, बहुत बड़ा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होता है फॉर एनी ऑफिसर। आज आपने खुद ही देखा सारे अफसरान खुश थे, उनके फैमिलीज खुश थी, वो भी आए हुए थे यहाँ पे। इससे फोर्स के मोरल पे बहुत इम्पैक्ट आता है और आई थिंक दिस स्टेप इज बीइंग अप्रिशिएटेड बाय ऑल। ज़िला पुलिस में 31 एहलकारों को सब इंस्पेक्टर्स और 91 को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदों पर तरक्की मिली। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर सदीक, रोही, रहीम यार खान। ईद कुर्बा करीब आते ही घास और चारे की मांग बढ़ने लगी। दूसरी तरफ महकमा लाइव स्टॉक ने मवेशी मंडियों में जानवरों की आमद के पेश नज़र तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इस हवाले से देखते हैं फराज रमजान की रिपोर्ट। ईद कुर्बान पर जानवरों के घास और चारे की मांग बढ़ जाती है। शहरी ईद से पहले ही अपने कुर्बानी के जानवरों की खिदमत करना शुरू कर देते हैं। महकमा लाइव स्टॉक ने भी मवेशी मंडियों में जानवरों के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। मंडी में दाखिल होने से पहले जानवरों का मुआयना किया जाता है। डायरेक्टर लाइव स्टॉक मुल्तान डॉक्टर सप्तान भट्टी का कहना था कि स्क्रीनिंग एरिया से किसी भी बीमारी का शिकार जानवर को मंडी में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा।
वहाँ पे एंटीबायोटिक्स भी मौजूद होंगी जानवरों के इलाज मुआवजे के लिए, एंटी एलर्जिक मौजूद होंगी उनके में, अगर खुदा न खास्ता कोई डायरिया या टेम्परेचर या कुछ भी है तो वो। इसके अलावा जो जानवर मंडियों में आएंगे उनकी सबसे पहले तो है वो स्क्रीनिंग की जाएगी, उनको देखा जाएगा कि उन पे कोई लंपी स्किन के कोई नोड्यूल्स वगैरह या कोई उनके साइन सिम्टम्स की प्रेजेंस ना हो। शहरियों का कहना था कि 1 माह पहले कुर्बानी के जानवर ले लेने चाहिए। कुर्बानी के जानवरों की खिदमत करके सुकून मिलता है। 25 जानवर रखे हैं, तकरीबन मेरा 50 किलो रोज़ का घास लगता है, तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। जब ईद करीब आती है तो लोग जानवर लेकर आते हैं, इनकी खिदमत करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। 1 महीने पहले मैं तो सब शहरियों को कहूँगा कि जानवर अपने घर में रखें, बरकत का काम है। घास फरोश कहते हैं कि इस मरतबा घास 4 रुपए फी किलो महंगा हुआ है। गुज़िश्ता ईद पर घास 7 रुपए फी किलो था। पिछले साल तकरीबन 6 तो 7 रुपए था, अब 10 तो 11 रुपए, महंगाई बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना था कि घास पीछे से महंगा मिल रहा है, इसलिए महंगा बेचने पर मजबूर हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अली रियाज के साथ फराज रमज़ान, मुल्तान। हुकूमत पंजाब कपास की ज़्यादा पैदावार के लिए कोशां। एक तरफ हुकूमत से मकसद के लिए सरतोड़ कोशिश कर रही है तो दूसरी जानिब मौसमी तब्दीलियों की वजह से बीटी कपास काश्त करने वाले किसान परेशान हैं। बेमौसमी बारिशों और यालाबारी के बायस कपास की अगेती और मौसमी फसल शदीद मुतासिर हो रही है। इस हवाले से देखिए विहाड़ी से हाफिज साले मोहम्मद की रिपोर्ट। विहाड़ी में चांदी की तरह चमकदार और रेशम की तरह नरम कपास पैदा होती है, मगर बेवक्त की बारिशों और यालाबारी ने अगेती और मौसमी कपास को नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से काश्तकार परेशान दिखाई देते हैं। मौसम के हालात नाल जिहड़ा है बारिश आ रही है, इहदे नाल कपास नूं बहुत ज़्यादा नुकसान है, लेकिन पंजाब हुकूमत कोशिश कर रही, लेकिन साडा तावन हाले तक कोई नहीं उन्होंने किया। इहदे वास्ते की इकदाम करने चाहिए ने। इस वास्ते जिहड़ा है फसल खराब हो रही है, ज़ालाबारी बड़ी हो रही है, मौसम की रूटीन कोई नहीं है कि बारिश हुण भी बहुत ज़्यादा सानू लेकिन नुकसान हो रहा है। महकमा ज़राअत कपास के काश्तकारों को हिफाजती तदाबीर और मौसमियाती तब्दीलियों बारे बर वक्त आगाही फराहम नहीं कर सका, जिसकी वजह से पंजाब हुकूमत के लिए किसी तौर पर कपास का हदफ हासिल करना मुश्किल नजर आता है। दिहाड़ी काटन के हवाले से बहुत अच्छा शहर था, इधर काटन बहुत अच्छी होती थी, लिहाजा अब भी ज़ालाबारी बारिशों की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से किसान बहुत परेशान है। और महकमा ज़राअत को चाहिए कि किसान के लिए कोई ना कोई सब्सिडी ज़रूर मुहैया की जाए। कपास के काश्तकार कहते हैं कि हदफ पूरा करने के लिए महकमा ज़राअत ने फील्ड सरगर्मियों के अहकाम जारी किए हैं, जो सिर्फ फोटो सेशन की हद तक ही महदूद हैं। उन्होंने कहा कि महकमा ज़राअत फील्ड में किसानों को मुकम्मल आगाही फराहम करे ताकि कपास के पौधों की नशोनुमा, फूल और फल की खुसूसी निगहदाश्त की जा सके। कैमरा टीम के साथ हाफिज साले मोहम्मद, रोही, विहाड़ी। मौसम के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। शहर ओलिया का मौसम बन गया औसम। मुल्तान में घने सुरमई बादल जमकर बरसे और खूब बरसे। शहरी सुहाने मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए घरों से बाहर निकल आए। खाने पीने की दुकानों पर रश, किसी ने चटपटे समोसे खाए तो किसी ने गर्मा गर्म जलेबी पर हाथ साफ किए। रिपोर्ट कर रही हैं सुहिरा तारिक। मुल्तान में सुबह के वक्त तेज आंधी और बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। आसमान पर छाए गहरे बादलों और ठंडी हवा चलने से मौसम खुशगवार हो गया। ऐसे में शहरी हसीन मौसम का लुत्फ उठाने घरों से बाहर निकल आए और रुख किया समोसे जलेबी की दुकानों का। बारिश की वजह से, मौसम की वजह से मौसम अच्छा है ना, बारिश हो रही है तो अच्छे सही समोसे बिक रहे हैं, अच्छे समोसे बिक रहे हैं। बारिश हो और मुल्तान के बासी गर्मा गर्म समोसे न खाएं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। शहरियों ने समोसों के साथ गर्मा गर्म जलेबी पर भी खूब हाथ साफ किए। खाने पीने की दुकानों पर खूब रश लग गया। मौसम बहुत अच्छा जा रहा है। हम समोसे ये देखें, आप समोसे बन रहे हैं, बहुत मजे से लोग खाने के लिए आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं जी। हम अब्रे रहमत बरसने से मुल्तानियों के चेहरे भी खिल उठे। मुल्तान का मौसम खुशगवार हुआ तो शहरियों ने गर्मा गर्म समोसे और जलेबियां खाने के लिए फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहिरा तारिक, मुल्तान।